الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الیکشن 2024 کل کا دن پاکستان کے تاریخ کا اہم ترین دن تھا، لیکن جس طرح پولنگ کا عمل گزرا اور اس کے بعد رزلٹس کا سلسلہ آنا شروع ہوا اور رات تقریباً 10:30 بجے 11 بجے تک رزلٹس آتے رہے، اس کے مطابق ساری چیزیں قوم کے سامنے تھیں، کچھ میڈیا پر اور کچھ RO آفیسز پر، لیکن الیکشن کمیشن کی بدترین نااہلی کی وجہ سے وہ رزلٹس تقریباً 11 بجے کے بعد بند ہوئے، لائٹس بھی بند ہوئی، میڈیا کے اندر بھی آدھے رزلٹس بند ہو گئے، پھر اس کے بعد RO آفیسز کا عملہ غائب ہو گیا۔ تحریک لبیک پاکستان بہت ساری پاکستان میں بیشتر سیٹوں پر مارجن کے ساتھ پوزیشن میں تھی، کسی پر فرسٹ پوزیشن میں، کسی پر سیکنڈ پوزیشن پر، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ رات بھر گزرنے کے بعد تحریک لبیک پاکستان کے بہت بڑے ووٹ بینک کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا۔ ابھی تک ایسے پولنگ اسٹیشنز ہیں جن میں 150، 200، 300 پولنگ اسٹیشنز ایسے ہیں جن کا رزلٹ ہی فارم 45 ہی نہیں دیا گیا، لیکن RO آفیسز سے اس کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے ان حلقوں کا، اور جب ہم نے وہ رزلٹ کمپائل کیا ہے فارم 45 کے مطابق، تو اس رزلٹ میں جو اناؤنس ہوا ہے اس رزلٹ کے اندر بہت بڑے مارجن ہیں، جیسے کہ میرے پاس لسٹنگ موجود ہے NA 43، NA 48، NA 233، NA 240، NA 50، NA 245، اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر تحریک لبیک کی جتنی صوبائی سیٹیں ہیں ان کے رزلٹس کو روکا گیا، اور صوبائی سیٹوں پر اس طرح کی صورتحال تھی کہ میڈیا پر بھی اناؤنس ہو گیا اور سوشل میڈیا پر بھی اناؤنس ہو گیا، RO آفیسز کے بورڈز پر بھی اناؤنس ہو گیا، فارم 45 کے مطابق بھی لیڈ پر ہیں، لیکن جب ووٹوں کو کاٹا گیا 5% رزلٹ باقی جو روک لیا گیا، اور اس کے مطابق 10 ہزار کی لیڈ کو کاٹ کر 10,000 ووٹ ادھر سے کم کر کر مخالف جو امیدوار ہیں ان کو 20 ہزار ووٹ دیے گئے۔ اس بدترین الیکشن کی دھاندلی کو تحریک لبیک پاکستان یکسر مسترد کرتی ہے، اس لیے کہ لاہور کا ایک حلقہ ہے جہاں سے حمزہ شہباز صاحب کو جتوایا گیا ہے، اور اس حلقے میں ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے، ہمارا وہاں پہ ووٹ فارم 45 کے مطابق تقریباً جو بنتا ہے وہ ہے 58,000، اور جو اناؤنس ہوا ہے وہ 36,200 ہے، اور جبکہ اس حلقے کے ابھی صرف اور صرف 130 45 فارمز ملے ہیں، باقی سارے 45 فارمز روک کر رکھے ہوئے ہیں۔ تو حالات یہ ہیں، اتنی بدترین دھاندلی شاید پاکستان کے تاریخ میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس کے اندر نہیں ہوا، اور سارے دن پولنگ کا عمل بڑا پرامن رہا، اور یہی لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہے جس کے حق میں قوم نے فیصلہ دیا ہے اس کو سب قبول کریں گے، لیکن اتنی بدترین دھاندلی جسے نہ تو دل قبول کر رہا ہے اور نہ دماغ قبول کر رہے ہیں، نہ آنکھیں قبول کر رہی ہیں، نہ پاکستانی قوم قبول کر رہی ہے، نہ امیدوار قبول کر رہے ہیں، نہ پولنگ عملہ قبول کر رہا ہے، اس کے باوجود پاکستان کے اوپر ایک ایسے مسلط کر دینا، اگر یہی تماشا لگانا تھا تو قوم کا اتنا وقت، قوم کا اتنا پیسہ، قوم کی اتنی مصروفیات ترک کر کے یہ تماشا لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ الیکشن کمیشن باہر آفس میں ایک اسکرین نصب کرتا اور کہتا کہ ہم نے ان امیدواروں میں سے اس کو منتخب کر لیا ہے، ہم نے اس کو، یہ پولنگ کا عملہ اور پولنگ کا عمل اور یہ کیمپین اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر یہ فیصلہ اسی طرح شورائی نظام کے ساتھ ہونا ہے، جو شورائی نظام پاکستان کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے، تو بہتر تھا کہ جن لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے وہ 10 ہیں، 5 ہیں، 25 ہیں، 100 ہیں، وہ سارے امیدواروں کے نام دیکھتے، جو ان کو من پسند ہوتا وہ ان کو سلیکٹ کرتے تھے، اور یہ تو سلیکشن ہے، الیکشن نہیں، اور سلیکشن بھی ایک لاڈلے کے لیے کہ جناب پہلے قوم کے سامنے رزلٹ اور آ رہے ہیں، اور تحریک لبیک پاکستان ابھی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جو ہم ابھی اس کو
बिल्कुल गैर हकमी और गैर सरकारी भी नहीं मानते हैं। सरकारी तो बिल्कुल ही चोर बाजारी है और गैर हकमी भी है। फिर भी मीडिया में जो रिज़ल्ट चलाया जा रहा है तहरीक लब्बैक के वोट्स का, वो तकरीबन कौमी असम्बली का जो और बाकी मिलाकर तकरीबन 30 लाख से अबव बताया जा रहा है वोट। 30 लाख वोट जो अभी ये बताए जा रहे हैं और जो वोट काटे हैं वो मेरे ख्याल से 30 लाख से कई ज़्यादा हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोट काट दिए गए हैं। ये मकसद नहीं कि हार जीत, ठीक है हार जाना, जहाँ हमारे लोग हारे हैं हम उसको कबूल करते हैं, लेकिन जहाँ हम जीत रहे हैं हम उनसे बहुत सारे मार्जिन्स में हैं, वहाँ ज़बरदस्ती जनाब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारान को हरा देना और फिर उनका रिज़ल्ट, जैसे ज़मान शाह साहब का हल्का है 240 में, उसमें वो 40,000 से अबव है, लेकिन रिज़ल्ट आया तो उनको 17,000 पर मीडिया पर भी ऐलान हो चुका उनकी जीत का, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज में, और सारी चीज़ें सामने रहीं। जब उनका नतीजा आया तो वो 17,000 पर हैं और जीतने वाले को शायद 38,000 से अबव कर दिया गया है। तो इस तरह वोट की कटिंग ये तो बिल्कुल नामंजूर है और इस तरह कौम के जनाब जो जज्बात हैं और कौम का जो फ़ैसला है और कौम ने जिनके हक़ में फ़ैसला दिया है उसको इस तरह काटना यकसर मुस्तरद कर दिया तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। और इंशाअल्लाह कल दिन 1 बजे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुल्क भर में हर शहर में एहतजाजी रैली का एहतमाम कर रही है और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक वाले कल अपने हक़ के लिए इंशाअल्लाह दिन 1 बजे निकलेंगे मुल्क भर के शाहराहों पर और एहतजाजी रैलियों का एहतमाम होगा। और जो हमारे हक़ पर डाका डाला गया है, जो हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है, उनके लिए इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक इस वक्त अदालत से भी रुजू करने के लिए जा रही है, कोर्ट से भी, और इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक अपने हक़ के लिए मैदान अमल में रहेगी। बहुत शुक्रिया। सवाल आवाज़ आ रही है आपको मेरी सही से? मैं अपना माइक ऑन करूँ। आपको नहीं लगता आपको उनसे हाथ मिला लेना चाहिए? मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे ताकि आप हुकूमत में आ सकें, और अगर आप हुकूमत में ना आते कम अज़ कम आप मजबूत अपोजिशन में तो जरूर आ सकते, क्योंकि उनसे हाथ मिलाने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन बाद में कहा जाता है ये हम नहीं कर सकते। देखिए, अगर आप कौम की बात करती हैं तो कौम से हमारा हाथ मिला हुआ है। अगर आप ये बात करती हैं, हाथ तो सबसे मिलाते हैं, यहाँ कौन ऐसा है जिससे हम हाथ नहीं मिलाते? पूरा पाकिस्तान है, पूरी दुनिया में हाथ हम सियासतदानों की तरफ। जी, मेरा इशारा उन सियासतदानों की तरफ था। कौन से सियासतदान ऐसे हैं? यहाँ से उठा के यहाँ पर लाया गया। देखिए, उनसे हाथ मिला देना तो अपने नज़रियात की, अल्लामा इकबाल कहता है खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। तो हमने अपने हक़ के लिए बात किया और इंशाअल्लाह मैदान अमल में रहेंगे। कोई ऐसी जी साहब, आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो टॉक की गई, मीडिया टॉक थी, उसमें जो निगरान वजारत दाखिला थे उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ दाइश को भी देख रही है, लब्बैक वालों को भी देख रही है। इस बात का क्या मतलब था? उन्होंने कहा TLP को देख लिया, मेरा ख्याल से वो TTP कहना चाहते थे, उनकी ज़बान बार बार फिसलती है, तो ये उनको अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। हम जनाब सियासी दीनी मजहबी और दीनी जमात हैं, हम इसके अंदर इलेक्शन के अंदर मौजूद हैं, वो हमें वाच कर रही है तो अच्छी बात है, उनको करना चाहिए, और लेकिन जहाँ उनको वाच करना चाहिए था वहाँ उन्होंने नहीं किया। अच्छा, NA-50 की आप सीट जीत रहे थे बिल्कुल। 2018 के इलेक्शन के बाद TLP ने जो कमबैक किया है, बड़ी भरपूर कैंपेन चलाई है, तो जो कल हमने देखा है कि एकदम इंटरनेट सर्विस किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, बंद हुई, उसके बाद सारे मामला आपके सामने हैं, तो जो इंटरनेट सर्विस बंद हुई उस पर आप कोई तशवीश का इजहार है? आप देखिए, मैंने तो पहले कहा था, शायद किसी सियासतदान ने ये बात की थी या नहीं की थी, मैंने इनको कहा था कि ये सर्विस भी बंद करेंगे, ये सिग्नल भी बंद करेंगे, ये हर चीज़ बंद कर देंगे, क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि कौम अपना फ़ैसला सुना रही है, कौम अपना कर रही है, तो उसके लिए ये हथकंडे करेंगे। उसके बाद इन्होंने सारा कुछ बंद किया, तो तशवीश बाबा उस आगाज़ तो वहीं से हो गया था, लेकिन इलेक्शन के पोलिंग्स बिल्डिंग्स के अंदर और बूथों के ऊपर कौम का और हमारे लोगों का भी पूरा कंट्रोल था, वहाँ धांधली नहीं हो सकी, तो फिर धांधले हुए रात मीडिया भी बंद करके और सिग्नल भी बंद करके और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी बंद करके, और इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं वो घर जाकर उन्होंने पता नहीं कहाँ बैठकर ये प्लान बनाया जिससे हर चीज़ को उलट के रख दिया। साहब भाई, क्या समझते हैं NA-50 अटक का जो हल्का है बड़ा अहम हल्का है, तीसरे नंबर पे जो कैंडिडेट था, अगर आपकी पोजीशन देखी जाए 82% रिजल्ट जो आए थे वहाँ पे साद रिजवी साहब लीड कर रहे थे, लेकिन जुम्मे की
नमाज पढ़ाई जाती है, उसके बाद जो है वो रिजल्ट सारे चेंज हो जाते हैं। जो तीसरे नंबर पे था उनको पहले नंबर पे कर दिया जाता है। इस देखिए वाले मैं से आपको आगे। बताता हूँ, वहाँ पर टोटल PP2 के अंदर 29 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट नहीं दिए गए अभी तक। वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं हमारे, लेकिन रिज़ल्ट नहीं दिए जा रहे। PP5 के अंदर 38 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके रिज़ल्ट नहीं दिए गए। PP4 के अंदर तकरीबन 29 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके अंदर नहीं दिए गए रिज़ल्ट, और ये टोटल 96 पोलिंग स्टेशन बनते हैं। इसके मुताबिक भी हम लीड कर रहे हैं। अभी तक जो रिज़ल्ट हमारे पास पहुंच चुका है और बाकी नहीं दिया, लेकिन ये 96 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट नहीं आया और RO साहब ने अपना रिज़ल्ट जुमे के फ़ौरन बाद सुना दिया है। तो यार मैं बात बार NA50 की करूं, ऐसी बात नहीं है। NA50 के अंदर भी हमारी पोजीशन ठीक थी, और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे हलके थे जिसमें कौमी और सूबाई तो बेशतर हलके थे जिनके अंदर था। और यहाँ पर भी ये शकरगढ़ के अंदर, नारोवाल के अंदर बहुत सारे ऐसे हलके हैं पूरे पाकिस्तान, ये खुसूसन साउथ पंजाब के अंदर, मिडिल पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे हलके हैं जहाँ पर हमारी तवक्कुआत से भी बाहर, यानी कि ये जहाँ आप मौजूद हैं, यहाँ पर कल का जो पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट हैं उनके मुताबिक हमने कई पोलिंग स्टेशन विन किए हैं। वो पोलिंग स्टेशन विन किए हैं, लेकिन उसका भी रिज़ल्ट इन्होंने शाम तकरीबन रात तक रिज़ल्ट सुनाते रहे, लेकिन रात 3 बजे के बाद 30% उसका रिज़ल्ट रोक लिया और सुबह उन्होंने 7 बजे रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। तो मसला नहीं है, हार जीत का मसला नहीं है। मसला ये है कि जो वोट कास्ट हुआ है उसको क्यों काटा जा रहा है। उसको इसलिए काटा जा रहा है कि हज़म नहीं हो रहा कि तहरीक लब्बैक ने इतना बड़ा वोट बैंक और इतना बड़ा वोट मार्जिन फिर दोबारा, और बल्कि तहरीक लब्बैक का जो वोट था पिछला, उससे तहरीक लब्बैक के वोट को 3 दफ़ा ज़रब लग चुकी है मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी, जो हम अभी कलेक्शन कर रहे हैं। अभी तो फॉर्म 45 जो हमारे पास मौजूद हैं और 46 जो सारा कुछ आएगा, उसके मुताबिक जब हम रिज़ल्ट को जो हम अनाउंस करेंगे, जो सरकार नहीं अनाउंस कर पा रही या इलेक्शन कमीशन नहीं अनाउंस कर रही, तो वो इंशाल्लाह आपको ओरिजिनल नंबर देंगे। लेकिन इंटरनेट की बंदिश की वजह से और सिग्नल्स ना होने की वजह से अभी भी बहुत इलाकों में हमारे लोग मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी अभी तक दुनिया मौजूद है अपना रिज़ल्ट लेने के लिए। RO ऑफिसेज तो RO का अमला तो इस वक्त पूरे मुल्क में गायब है, कहीं भी हमें नज़र नहीं आया। जब अंदर गए हैं, बाहर जनाब फोर्सेस खड़ी हुई थी, पुलिस खड़ी थी, रेंजर्स खड़ी थी, और जब अंदर घुसे हैं तो अंदर हमला है ही। तो ये सूरत हाल है। इलेक्शन को सिलेक्शन से भी बदतर कोई लफ्ज़ हो तो वो बना दिया गया, तमाशा बना दिया गया। कभी RO का इलेक्शन कहा जाता है, कभी कोई कहा जाता है, ये कौन सा था जी, ये इलेक्शन कौन सा था? कभी RO का कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि ये फलां इलेक्शन है, ये कौन सा इलेक्शन रहा? ये जबर का इलेक्शन, जबर था। लेकिन आप, जबर रात 11 बजे के बाद। लेकिन वोट तो आपके कास्ट हुए हैं, जी, फिर क्या हुआ है रात? तो जो होता है पहले इस मुल्क में, कभी वो पहले RDS बैठा था इस आप टाइम जल्दी कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, इसका क्या आउटपुट क्या निकला? यार हम यही चाहते हैं कि देखें, हमारा जो हक है ना वो हमें दिया जाए। देखें, अगर ये नहीं दिया जाएगा तो कौम का इस सिस्टम से एतबार उठ गया तो फिर कौम कहाँ गए? कौम एक वोट कास्ट कर रही है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, उसके पोलिंग स्टेशन से उसको रिज़ल्ट देना चाहिए। उसके अंदर जो हार जीत बात की बात है, लेकिन उसका रिज़ल्ट उसको मिलना चाहिए। अगर कौम का इस सिस्टम से जनाब तवक्को और यकीन उठ गया और ये कि यार ये सब ड्रामेबाजी है, तो फिर क्या होगा? इस मुल्क में कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? जो पहले हो रहा है वही तमाशा होगा। TLP के कुछ हलकों में भी ऐसे ही हुआ है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको भी कंडेम करेंगे? जी, TLP के सारे हलकों में जो कुछ हुआ है PTI, उसको- sorry, PTI। जी देखिए, इलेक्शन के रिज़ल्ट को जहाँ भी तब्दील किया गया है, वो PTI का हल्का हो, TLP का हो, PMLN का हो, वो बेशक उनके हक में हो, उसको भी मैं कंडेम करता हूँ। अच्छा साहब, बैरिस्टर गौहर साहब की बातचीत हुई थी आपसे, वो क्या बात हुई थी वो बताइए। जी, बैरिस्टर गौहर जो PTI से है, उनकी आपसे टेलीफोनिक कोई बात हुई है? सियासी लोगों से बातें चीतें होती रहती हैं, उनको मसला। बज़ाहिर ये लग रहा था कि इस दफ़ा कोई और निशाने पे है, तो क्या निशाना आप पे भी था? देखें, निशाने पर हम तो हमेशा रहे हैं, कब नहीं रहे। हम निशाने से उतरे कब है? बहुत शुक्रिया सर, कोई जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। बहुत शुक्रिया। हमने आपकी आगे भी ना कवरेज की है, वहाँ पर आपके कारकुनों पर स्ट्रेट फायर किए गए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखें, स्ट्रेट फायर से नहीं हम घबराने वाले, और ना हम इन हथकंडों से घबराने वाले। हमने कैंपेन के दौरान सैकड़ों गोलियां खाई हैं, शहीद को खाए हैं। इन चीज़ों से हम घबराने वाले नहीं हैं। हम अपना हक मांगते हैं और इंशाल्लाह अपना हक लेंगे। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।